Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Again, I am bringing you the latest information, latest update from German universities which will accept students who has less than 70 percentage in class 12th. We got the clear picture even before 15th of March. 15th of March is the official update gonna come in anabin.kmk.org, but we got you on 10th of March. So let's start the video. In this video, I have the proofs from the universities, from the UniAssist, and especially for those students who has less than 70 percentage, this video is very important for you, especially for those students who are in Germany thinking what to do. This video is very important for you because in the end, we're gonna give you the complete solution and the concrete path in which you can study in Germany even below 70 percentage. So let's start the video. So first update we got from the UniAssist. This is the official rejection letter from the UniAssist for one student who was having less than 70 percentage. So let's see the official update and rejection letter from the UniAssist. So this rejection we got in the month of March, even before 15th of March. Today is 10th of March. So now what UniAssist started doing is they are already applying the rule even before 15th of March, because this is the same thing I told in my previous videos. I already told you that UniAssist will not take any APS even issued before 15th of March, and even if you have less than 70 percentage but you have the APS, UniAssist will not take you. I told you even on the video which I released in the month of February, even in the month of March, the first video got released by Amritpal Vision. Everybody was saying, no, you are wrong. No, you are wrong. Universities will accept the APS which has been issued before 15th of March. Now I have the official update, rejections from UniAssist, from TU Berlin. I gonna show you how you can study in Germany if you have less than 70%. Let's start the video. This is the official rejection letter issued by UniAssist, and you can check what they have written. The guidelines sent by Central Office of Foreign Education, Zentralstelle for Ausländisches Bildungswesen, ZAB, for Indian School Certificate have been updated, right? Now they have updated Indian School Certificate requirement. You are no longer eligible to study at a German university, nor you are eligible to attend a Studienkolleg preparatory course. Previously, an average of 50% or higher in your senior higher secondary school certificate class 12th was sufficient. This requirement has now been changed to a minimum of 70% or higher. As a result, admission is only possible upon completion of a bachelor's degree. So this student is no longer acceptable in Germany because he has less than 70%. So now they are saying this student is in Germany, right? This student is in Germany and they are saying that you can apply after completion of bachelor's. How he will do bachelor's? He is in Germany, right? So now we still have few options for those students who are in Germany stuck with the new rule of APS. Now what we gonna tell you? So we have the other update from TU Berlin, right? In TU Berlin, they have also clearly mentioned that even if you have APS up before 15th of March, that is not acceptable in TU Berlin. UniAssist will also not give you the VPD, right? They have mentioned it very clearly. Okay. So this is the official update, what we got from TU Berlin. Hello, thank you for your message and for your interest in applying to Studienkolleg at TU Berlin. Please note that applicants with Indian educational certificates for winter semester 26-27 and later the following regulations will apply. Applicants with Indian educational certificate are required to submit a valid APS certificate, right? That is required. From 15th March onwards, prospective student will only receive an APS with access to a preparatory college Studienkolleg if they have an overall grade of more than 70%. Now, very important. Please note, prospective students with an APS issued before 15th will only receive the VPD with access to the Studienkolleg from UniAssist if they can prove that their overall grade is higher than 70, right? UniAssist ने ये बोल दिया है, TU बर्लिन ने ये बोल दिया है, अगर आपके 70 से नीचे हैं आपको UniAssist वाले VPD नहीं देने वाले और UniAssist उनको भेजेगा ही नहीं डॉक्यूमेंट्स. तो UniAssist में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई मत करिएगा, पैसे मत खराब करना. ऑलरेडी हमने हमारे इन्वेस्टमेंट से एप्लीकेशंस करके ऑलरेडी डाल दिया और रिजेक्शंस आने चालू हो गए हैं.
जस्ट बिकॉज कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट्स को गलत डिलेमा में रखें कि आपका हो जाएगा। मैंने मेरी लास्ट 2 वीडियोस में किसी में नहीं बताया कि हो जाएगा, और स्टूडेंट्स आके कमेंट डाल रहे हैं, पेरेंट्स कमेंट डाल रहे हैं कि अमृतपाल यू आर रॉन्ग, एपीएस ने ऐसा बताया है कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे 15 मार्च से पहले, और मैंने तभी भी बताया था, मना किया था नहीं होगा, एंड दिस इज द प्रूफ। आप ये देख लीजिए, और ये हमने हमारे पैसे से इन्वेस्टमेंट करके एप्लीकेशंस डाली है, डमी एप्लीकेशंस, सो दैट हम 15 मार्च से पहले आपको प्रूफ दे पाए कि वो नहीं होने वाला है, और आप 15 मार्च से पहले एक अच्छा सा रास्ता आपके लिए देख लें, राइट। और वो रास्ता हम लोग आपको बताने वाले हैं। कांटेक्ट करिए हमारी टीम को जल्दी से जल्दी, एंड उनसे सॉल्यूशन लीजिए। बेस्ट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको अमृतपाल विजन ही दे सकता है। हमारे पास 5 दिन है, सिर्फ 15 से पहले आपको वो सॉल्यूशन ले लेना है और आपकी यूनिवर्सिटीज में चले जाना है, अगर आप जर्मनी में हो तो, अदरवाइज यू विल बी स्टक्ड। ओके, सो एक और अपडेट है जो जर्मन यूनिवर्सिटी से आया है, जो यूनियसिस से नहीं है, और उन्होंने क्या बताया है वो हम अभी पढ़ेंगे। Sehr geehrter Herr Amanpreet, da Sie sich schon vor dem 15. März bei der APS Indien beworben haben, wurde Ihr Zertifikat nach den alten Richtlinien bewertet und ist noch gültig। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी APS है, जो 15 से पहले एप्लीकेशन हो गया है, और आप फॉल होंगे पुरानी कैटेगरी में, पुराने रूल्स के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन आप फॉल होने वाले हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस शॉर्ट में। फिर दूसरा रखा है द neuen Regelung, राइट, gilt nur für Bewerber, die sich nach dem 15. März bei der APS Indien bewerben. Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen Bewertungsvorschläge angewendet. Means 15 के बाद जो न्यू रूल्स है वो अप्लाई होंगे। तो ये एक स्टूडेंट को लेके जिन्होंने बोला है कि हम लोग लेने वाले हैं, बट अगेन उसमें आउफनामे प्रूफ होंगे, आप देने वाले होंगे, तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो हमें बीच में नहीं रहना है, राइट, कि हमारे पास अच्छा अभी ये बात क्लियर है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज यूनी असिस्ट के साथ होगी उसमें नहीं होने वाला है, तो हमारे पास वही ऑप्शन है जो यूनी असिस्ट के बिना हो, और उसमें भी आप आउफनामे देने वाले हो, तो अगेन आपके ऑप्शंस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मुझे आपकी तैयारी पता नहीं है, बट अमृतपाल विजन के बच्चे निकाल लेंगे, क्योंकि हम स्पेशल प्रिपरेशन बच्चों को जर्मनी में करवाते हैं, लास्ट 15 साल के पेपर करवाते हैं। बट अगर आप अमृतपाल विजन के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको ये चांस नहीं लेना है कि सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटीज आपको मिल रही है एप्लीकेशन करने के लिए, और उस 3 में आप आउफनामे देने जा रहे हो। लेट्स से एग्जांपल नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी वही बच्चे उनमें जाएंगे, और बहुत सारे जाएंगे, क्योंकि 70 से नीचे जितने भी बच्चे होंगे वो उन्हीं तीन गिनी चुनी स्टूडेंट कोलेक्स में अप्लाई करेंगे, जो अभी बोल रही है 10 मार्च तक कि हम लोग लेने वाले हैं। अगर आपके 70% से कम है, ये अपनी बात चेंज भी कर सकते हैं 15 के बाद, राइट। सो अभी एक और यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये ईमेल किया है, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट वी रिसीव्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम APS. This new 70% update applies to the applications received on or after 15th March 2026. Any application received or certification issued on or before 14th of March falls under the old 50% criteria. अच्छा, मैं ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब इन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करो और 15 के बाद आपको ये बोले कि नहीं सॉरी ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमको रूल अभी पता चला है, राइट। ये तो अभी बोल रहे हैं, ऑफिशियल रूल तो 15 को आने वाला है, तो हो सकता है ये यूनिवर्सिटीज़ अपने चेंज कर दें, अपने वर्डिंग्स चेंज कर दें। बट अभी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ बोल रही है कि हम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, एक और अपडेट है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। Dear Amanpreet, thank you for your inquiry. Based on the information that we currently have, the new 70% rule will apply retroactively. मतलब retroactively का मतलब होता है कि पीछे से भी वो अप्लाई करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि अभी से अप्लाई होगा, बट जो प्रीवियस रूल को बाईपास करके ये पीछे के रूल्स को अप्लाई हो जाएगा। मतलब जो पीछे का 50% का रूल था, अभी वो 70% का हो गया। इसका मतलब होता है रेट्रोएक्टिवली to all applicant with Indian high school degrees regardless of the graduation year. This also means APS certificate which have been issued under the old rule most certainly will not be valid anymore. इन्होंने क्लियर बोल दिया है। We do not have any information yet if there are exemptions for Indian applicant who already entered Germany with a study visa or visa for a preparatory language course. मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं,
राइट। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास वो कोई अपडेट नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी जर्मनी में आ चुके हैं उनका क्या होने वाला है, जो लैंग्वेज कोर्सेज में आ गए हैं उनका क्या होने वाला है। बट अमृतपाल ऑफ विजन के पास सारी अपडेट है कि इन बच्चों को क्या करना चाहिए। Official information will be published on ANABIN by 15th March 2026. We strongly recommend to wait with any application until that date and check the official statement from ZAB. Thank you for your understanding. इसका मतलब ये होता है कि 15 तारीख तक हमें वेट करना है। आधी यूनिवर्सिटीज ऐसा बोल रही है कि भाई 15 तक वेट करो, बट 15 को वेट करने के बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे जर्मनी में फंसे हुए हैं, ये वीडियो आपको उनको भेजना चाहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट उन बच्चों को 15 से पहले हम ऑफर लेटर दे पाएँ। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कॉलेज है, उन यूनिवर्सिटीज़ का ऑफर लेटर दे पाएँ जो बाद में आपको ये नहीं बोलें कि आपका कुछ नहीं होगा। 15 के बाद चीज़ें मुश्किल है मेरे दोस्तों। तो 15 से पहले आपको एप्लीकेशन करना है। 15 से पहले आपको हमसे टच में आना है। मतलब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं गाइस। तो इसको प्लीज देखिएगा, गेट इन टच। सॉल्यूशन लेना है तो लो, वो आपकी मर्जी है, बट सिर्फ और सिर्फ अमृतपाल ऑफ विजन के पास सॉल्यूशन है आज की डेट में। और अभी मैं थोड़े बहुत कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा। जो हमारी पुरानी वीडियोस में जो कमेंट थी, वो कमेंट ये थी। सो हेलो सर, if I am already in student college going to give FSP in 2 months and I got my APS last year but will be aiming for winter semester 26-27। उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑलरेडी स्टूडेंट कॉलेज में हो, आपका FSP का रिजल्ट आएगा, आपका एग्रीगेट बन के आपको ऑलरेडी न्यू VPD मिल जाएगी एप्लीकेशन करने के लिए। आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको बैचलर्स के लिए हमसे एप्लीकेशंस करवानी है, डू कॉन्टेक्ट अस। सर, आई गॉट एडमिटेड इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन समर 26 एंड आई हैव लेस देन 70% in 12th, but I want to change my university in winter 2026 with my current APS. Can I change or not? देखो, विंटर सेमेस्टर में तो ऑलरेडी अगर यूनिअसिस्ट से जाओगे वो कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। चेक अबाउट योर यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी अंडर यूनिअसिस्ट आती है कि नहीं। अगर यूनिअसिस्ट के अंदर आती है तो भूल जाइए। I am already in Germany and have APS too, but I have less than 70%. What should I do? I don't even have B1. I am doing language in an institution. देखो, अगर आपके पास B1 नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ऑप्शन था आज तक जो हमने बताया हुआ था, कब से हम हमारी वीडियो में बता रहे हैं कि उन लोगों को मत सुनिए जो बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस होगा। मैंने अपनी पहले दिन से वीडियो जो बनाई है, जो फर्स्ट वीडियो APS के आया था, वो सिर्फ अमृतपाल ऑफ विजन की यूट्यूब चैनल में आया था। उसमें भी मैंने बताया था कि गाइस नहीं होने वाला है। अभी देख लिए 400 यूनिवर्सिटीज में आप सीधे 150 में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो यूनिअसिस्ट के अंदर है। और वो यूनिवर्सिटीज भी अभी मना करना चालू कर रही है जो यूनिअसिस्ट के अंडर नहीं है, क्योंकि ये रूल सबके लिए अप्लाई होने वाला है, राइट। और अगर आपको ऑफर लेटर मिल भी जाए, बट वीजा वाले आपको वीजा देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बारे में हम आपको अपडेट करने वाले हैं। बने रहिएगा इस चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सक्लूसिव चैनल है स्टूडेंट्स जो जर्मनी पढ़ने चाहते हैं, राइट। सो अभी लास्ट जो कमेंट है, दैट इज इफ आई गेट एडमिशन फॉर समर 26 एंड want to change my course for winter 26, will this rule apply to me? I scored 69.2% in my grade 12th. So अगेन विंटर सेमेस्टर 26 में अगर आप जाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है अगर आपकी यूनिवर्सिटी अंडर यूनिअसिस्ट है। गाइस, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गेट इन टच विद अस इमीडिएटली टू गेट द एक्सक्लूसिव गाइडेंस एंड एक्सक्लूसिव पाथवे टू स्टडी इन जर्मनी इन समर 2026। सी यू सून। एंड यस, कोई भी डाउट है जरूर लिखिएगा कमेंट में। नए वीडियो के साथ आएंगे और 15 मार्च को एक और वीडियो बनाएंगे। और हमारी रिसर्च जो है चल रही है, हमने एप्लीकेशंस डाली है, हमने खुद से डमी एप्लीकेशंस बना के जर्मन यूनिवर्सिटी को डाली है, सो दैट 15 से पहले आपको अच्छे ऑप्शंस दे पाए। सी यू सून हियर एट अमृतपाल ऑफ विजन।